ਵੈਲਕਮ 10th ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡੇ 39 ਤੋਂ ਡੇ 42 ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੇ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੰਪਾਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਓਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3rd ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਪਲਾਟ ਐਂਡ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਔਨ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨਿਕਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2x + 3y = 9। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ, ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਜਿਟ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ x ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ y ਦੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੋਚਣੇ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ x ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜੇ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜੇ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, 9। ਆ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟੇ 2। 9 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4.5। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ y ਨੂੰ ਦੇਖੋ, y ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ, x, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 9 - 3 1 = 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 6/2, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3। ਤਾਂ ਆਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। y 1 ਹੈ ਅਤੇ x 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ 3 ਮੰਨਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ 3 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, 3 ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ 9 - 3 ਤੀਏ 9, 3 3 = 9 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 0/2 ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਨਸਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡਰਾ ਕਰਤੇ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4.50, ਇੱਧਰ x ਸੀ ਇੱਧਰ y ਸੀ, ਤਾਂ y ਕਿ x, ਹਾਂ x 4.5 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਔਰ 5 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਊਗੀ। y 0 ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ x ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4.50 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
दूसरा पॉइंट सी अपने कोले 3 1, तो आप एक्स धुरे के उपर 3 ते पहुँच जाएंगे तो थोड़ा उपर जाके 3 1 पॉइंट प्लॉट कर देंगे। नैक्सट सी अपने कोले 0 3, तो 0 आ सी 0 तो आप एक्स धुरा तो है ही नहीं है, ठीक है, वाई धुरे का ही पॉइंट है, तो जिथे y3 होगा उत्थे अपने कोले 0 3 पॉइंट आ जाएगा। हुण ये तिन्ने जिहड़े पॉइंट ने बेटे स्केल लैके पेंसिल लैके इन्हां तिन्नां पॉइंटां दे विच्चों लंघदी हुई एक रेखा खिंच देनी है, जिहड़ी कि इस पॉइंटां नूं इस समीकरण नूं दिखाउंदा होया ग्राफ होऊगा। बाकी दे जिहड़े भी आपां नूं अगले ग्राफ आउणगे ओह मैं तुहानूं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। हाँ जी, नैक्सट जे डे का काम अपना 41 डे का। By seeing the graph, observe the solution of linear equations in two variable। आंसर तो इन्हें नाल ही दिता होया बेटे। देखो इत्थे तुहानूं दोनों लाइन्स जिहड़ियां ब्लू कलर दियां दिख रही ने ਉਹ इस एक सिंगल पॉइंट ते आके कट रही ने। इट मीनस जे इन्हां दा एक यूनीक सोल्यूशन है, एक विलक्षण हल हैगा। तो जदों लाइनां दोनों समीकरणों के जिहड़े ग्राफ ने वो एक पॉइंट ते कटते हैं, उन्होंने आपां इंटरसैक्टिंग लाइनस कहने आ, तो उन्हां दा सोल्यूशन बेटा एक हुंदा है। अगलियां लाइन दे विच देखो तुहानूं दोनों ब्लू लाइनस एक दूजे दे पैरलल जांदियां दिख रही ने, तो जदों ये पैरलल जाणगियां बेटा तो जिधर नूं मर्जी वधाई चलो ये कदे भी आपस दे विच मिलणगियां नहीं। जदों मिलणगियां ही नहीं तो इन्हां दा कोई भी हल नहीं निकल सकदा। तो जदों लाइनस पैरलल होणगियां तो उन्हां दा कोई भी सोल्यूशन नहीं हुंदा। नैक्सट दे विच देखो थोड़ा देखना तुहानूं ध्यान ना पऊगा, इहदे विच दो लाइनस ने, एक ब्लू है एक रैड है, पर दोनों ही एक सिंगल लाइन दे उपर ही शो कीतियां होईयां। इट मीनस ये किहड़े हल ने, अनेकां हल ने ना, इनफिनिट सोल्यूशन ने। तो इहदे विच लाइनां की ने संपाती, कोइंसीडेंट, ठीक है, एक लाइन के उपर ही दूसरी लाइन के सोल्यूशन ने, तो ये लाइनस संपाती कहाउंदियां ने। ठीक है बेटा जी, तो ये सीगे अपने डे 41 का काम। नैक्सट हैगा अपने कोले 42 जिहड़ा है डे, फाइंड आउट वैदर द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरलल और कोइंसीडेंट। ऑल्सो प्लॉट ग्राफ ऑफ इट। बेटा जी जिहड़े भी उन्हें कहा भी ग्राफ प्लॉट करो वो मैं तुहानूं नाल दी नाल ड्रॉ करके दिखाऊंगी, पर इत्थे स्क्रीन ते नहीं ड्रॉ कर सकते, वो बिल्कुल वीडियो दे एंड ते मैं बनाने सिखाऊंगी। ठीक है बेटे, इत्थे आपां सिर्फ ये देखते हैं कि इन्हां दे हल किस तरह के ने। हाँ जी, तो चैक करन लई A1/A2 वाला ही मैथड लगूगा, B1/B2, C1/C2 कटा लो जिहड़े जिहड़े आपस च कटते हैं। 1/2 आ गया बच्चे, ये भी 1/2 आ गया, ये 1/3 आऊगा। 8 या 24 हुंदा, 4 दूनी 8 हुंदा, 2 दूनी 4 हुंदा। तो तुहाडे कोल जिहड़ा अनुपात बनिया है 1/2 1/2, ये तो इक्वल ने। ये 1/3 है, ये इक्वल नहीं हैगा। इट मीनस किस तरह का सोल्यूशन है इन्हां दा, नो सोल्यूशन। तो अपना जिहड़ा ग्राफ बनूगा बेटा वो किस तरह दी लाइनस का बनूगा, पैरलल लाइनस का। वो आपां बिल्कुल वीडियो दे एंड ते बनावांगे। ठीक है बेटा, पहला ये सॉल्व करना है कि इस तरह इहदा हल की है, क्योंकि उन्हें पहला ही पूछे बाद चों ग्राफ बनाने लई कहा। तो सम दे शुरुआत दे विच पहला ये पता कर लेना, फिर ग्राफ ते आपां इन्हां दे पॉइंट्स फाइंड आउट करके सोल्यूशन फाइंड करके इनू ड्रॉ कर लांगे। हाँ जी बच्चे, हुण आपां इन्हां दी होम असाइनमेंट ते चलदे हैं। हाँ जी, विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ चेक वैदर द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी इंटरसैक्टिंग, पैरलल और कोइंसिडेंट। देखो सेम गल्लां हर क्वेश्चन दे विच पूछियां जा रही ने, है ना। हुणे तुसीं कॉपी पैन नाल दी नाल चक लो तो मेरे नाल ही इनू सॉल्व करके देखो। बहुत ईजीली बच्चे तुसीं इनू सॉल्व कर लोगे। यही दसना है भी ग्राफ कटते ने कि समांतर ने कि संपाती ने, तो उहदे लई A1/A2 वाला मैथड यूज़ करना है। चलो फस्ट दे विच देखो 2/6, 7/21, 4/12, तो ये भी कट के 1/3 आऊगा, ये भी 1/3 आऊगा, ये भी 1/3 आऊगा। तो सारे आपस दे विच की आ गए इक्वल। तो इन्हां दा किस तरह का हल है, किस तरह का ग्राफ बनूगा, संपाती।
ठीक है, क्योंकि ये सारे जे सारे अनुपात बराबर आए ने तो ये अनेकां हल ने। जदों इहदा ग्राफ बनावांगे तो एक लाइन के उपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ बनेगा। चलो सैकेंड नूं सॉल्व करते हैं। 5/6 -3/2 4/9 तो ये तो कोई भी आपस च कट नहीं रहे, तो इत्थे आपां नॉट इक्वल टू का साइन पा देंगे। तो हुण तुसीं मेरे तो पहला लिख लिया ना आंसर, सारिਆਂ ने फटाफट लिख लिया। तो किस तरह के हल ने बच्चे, ये किस तरह के ग्राफ बनणगे, आपस विच कटदे हुए। इन्हें यही पूछा सी आपस विच कटदे हन, तो आपां कहांगे कटदे हन। थर्ड वन देखिए जी, 3/9 -2/-6 3/8 ये कट के 1/3 आ गया, ये भी कट के 1/3 आऊगा, क्योंकि माइनस माइनस भी आपस च कट जाएंगे। एक मिनट मैं इन्हूं थोड़ा साफ लिखदी हाँ। हाँ जी, आप इत्थे लिखते हैं ताकि थोनों क्लीयरली दिख सके। हाँ जी, ये नैगेटिव नैगेटिव कट गए, ये भी 1/3 आऊगा, ये भी 1/3 आऊगा। ये आपस च इक्वल ने, थर्ड वन वाला कटदा नहीं तो वो पहले दो दे इक्वल नहीं आ रहा। तो इत्थे किस तरह दी रेखावां बननगियां, समानांतर पैरलल लाइनस। इत्थे किस तरह दी बननगियां, कोइंसीडेंट, इत्थे इंटरसैक्टिंग, इत्थे पैरलल। समझ आ गया बच्चे, आपां ने यही पूछा सी ते आपां तिन्नां दे आंसर देते। अगला ड्रा द ग्राफ ऑफ, ये तो आप फिर बाद चों वीडियो के एंड ते करांगे। नैक्सट दे विच भी यही है कि ग्राफ बनाओ तो देखो रेखावां काटदियां ने, समांतर ने कि संपाती ने। इन्हें पहला कहता ग्राफ बनाओ अते देखो, तो फिर ये ग्राफ बना के ही चैक करना आपां। हाँ जी, ये पहला पता करन लई क्या है, देखो फाइंड आउट वैदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस आर इंटरसैक्ट एट ए पॉइंट पैरलल और कोइंसीडेंट, आलसो प्लॉट ग्राफ ऑफ इट। मतलब पहला चैक कर लो, तो पहला आपां दोनों सम्स का जिहड़ा हल है वो चैक कर लैंदे आ। हाँ जी, इहदा आ जाऊगा 5/7 -4/6 तो 8/9। सिर्फ आ कट रहा सेंटर वाला, होर कोई नहीं कट रहा। तो यह नॉट इक्वल आ रहे ने, बराबर नहीं आते। तो फिर यह किस तरह का ग्राफ बनूगा, काटवियां रेखावां का। ठीक है, आपस में यह कटनगियां। इनू चैक करते हैं। हाँ जी, माइनस माइनस कट गए, 12 दूना 24, 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 9 2 18, 3 2 6, 12 2 24, सारे इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो फिर यह किस तरह के बननगे बच्चे, संपाती, कोइंसीडेंट। इस किस तरह के बनते सी, इंटरसैक्टिंग। ग्राफ आप बनावांगे बिल्कुल वीडियो के एंड ते। ठीक है बेटा, इस तो अगला काम देखिए। तो इस तो अगे नहीं हैगा काम अपने कोले, 42 तक ही सी। ते हुण आपां इस तो बाद तुहानूं वीडियोज़ बना के दिखाने। हाँ जी बेटा, देखो डे 42 दे विच सी अपने कोले ये दोनों इक्वेशनस दित्तियां होईयां सी। हल आपां पता कर लिया सी कि जो भी इहदियां ग्राफ च बनेगा वो समांतर लाइनां दा बनेगा। हुण आपां वो ग्राफ बनाउणा शुरू करना। सब तो पहला बेटा जी ये देखा करो कि तुहाडी किसी भी इक्वेशन दे विचों कुछ साझा निकलदा है। जिवें इहनूं आपां जे 1 नंबर दे दईए समीकरण नूं, इहनूं 2 दे दईए, तो पहली समीकरण दे विच सारे दे सारे जिहड़े डिजिट ने 2 दे पहाड़े ते जा रहे ने, तो आपां उहदे विचों 2 नूं साझा कढ सकदे हां। देखो ये रह जूगा अपने कोले x + 2y = 4। हुण इहदे आपां नूं गुण जिहड़े हल कढने ने आपां 3 वो भी सौखे ने हल कढने। ठीक है, तो पहला की देखना है बेटा, पहला ये देखना है कि जिहड़े भी आपां नूं समीकरण दित्ती है उहदे विचों कुछ साझा निकलदा है। हुण इहदे विच सिंगल x आपां एक साइड ते रख लांगे, 2y आपां दूसरी साइड ते लै जांगे। हुण इत्थे y का मुल मन्नी जाओ बेटा, तुहाडे कोले x का आंसर आई जाऊगा। तो मान लो y किन्ना है 0, इंग्लिश च की लिखोगे, लैट y = 0। हाँ जी, 4 माइनस इत्थे दा 0 ही आऊगा, तो अपना आंसर किन्ना आ गया 4। तो किहदा आया x का, तो x अपने कोले 4 आया जदों आपां y नूं भरिया सी 0।
ਹੁਣ y ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ, 1 ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਮਾਈਨਸ 2 ਇੰਟੂ 1 ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ, 2 ਏਕਮ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਉਂਗੇ 2, ਤਾਂ x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ y ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਸੀ 1। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਆਨਸਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 2 ਮੰਨ ਲਓ y ਨੂੰ, ਨੈਕਸਟ ਡਿਜਿਟ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੂਣੀ 4 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? 0। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ y ਭਰਿਆ ਸੀ 2, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਆਇਆ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੱਭਿਓ ਜਿਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ 1 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ 2, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਫਰੋਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ? 4। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ x ਪਲੱਸ 2y ਬਰਾਬਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? 6 ਚੌਕਾ 24, 4 ਏਕਮ 4, 4 ਦੂਣੀ 8 ਤੇ 6 ਚੌਕਾ 24। ਤਾਂ x ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, 2y ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? y ਨੂੰ ਲੈਟ ਕੀ ਕਰੀਏ? 0 ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆਊਗਾ, 6 ਚੋਂ 0 ਘਟਾਉਂਗੇ 6 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ x 6 ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ y ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ 0। ਤਾਂ y ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਮਾਈਨਸ 2 ਏਕਮ 2, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? 4। ਤਾਂ ਜਦੋਂ y 1 ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ y ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 2। ਉਦੋਂ ਹੀ 4 ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਤੁਸੀਂ y ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ 2 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ x ਵੀ ਆ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਬੇਟੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਮਤਲ, ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪਲੇਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੀਜਨ, ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, x ਤੋਂ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ x ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ x ਨੇ। ਇਹ y ਤੋਂ ਰਹਿ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ y ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ y ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 4 0, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਭੋਗੇ x 4 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ? 0। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ 4 0। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ x ਧੁਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 2 1। ਤਾਂ x 2 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ। y ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨੀਚਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਵਾਂ? ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰੇਖਾ ਬਣੇਗੀ ਇਹ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 2, ਮਤਲਬ 0 ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹ? y ਧੁਰੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਰਾ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਸਕੇਲ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਖਿੱਚਤੀ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਆਨਸਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ 6 0, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, 6 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ x ਧੁਰੇ ਦਾ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 1, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 1 ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4 1। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 2 2, ਤਾਂ 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ। तो ये पॉइंट आ गया अपने को 2 2। तो मैंने दूसरी लाइन दे भी तीनों जड़े पॉइंट सी वो ड्रॉ कर ले ने। इन्हों भी स्केल और पेंसिल की मदद नाल तिन्ने पॉइंटां चों लंघदी हुई आपां एक रेखा खिंचांगे। हाँ जी बेटे देखो तिन्ने पॉइंटां चों लंघदी मैं रेखा खिंच दी है। तो तुहानूं दोनों समीकरणों के जिहड़े ग्राफ ड्रॉ किए ने वो दिख रहे ने भी एक दूसरे दे समान अंतर जा रहे ने। इन्हां दा कोई भी हल नहीं निकलेगा क्योंकि यह कदे भी आपस विच किते भी नहीं मिलणगे। ठीक है बेटा, आई होप तुहानूं ये डे 42 का काम समझ आ गया होगा। हुण आपां इस तो नैक्सट वाला ग्राफ बनाउने आ। हाँ जी नैक्सट बेटे डे 40 की जिहड़ी होम असाइनमेंट है उहदे विच भी आपां नूं इदां एक ग्राफ बनाउण लई कहा होया है। तो पहला की करना है, आपां कोई भी एक जिहड़ा वेरीएबल है एक साइड ते रख लो, दूसरा वेरीएबल दूसरी साइड ते लै जाओ, 3 नूं भी ओवर दे विच लै जाओ। ठीक है, हुण आपां इहदे 3 आंसरस फाइंड करने ने, 3 सोल्यूशन। तो तुसीं इत्थे y दा मुੱਲ अपने वालों सोची जाना है तो x दा मुੱਲ आ जाएगा। बस इन्ना क ध्यान रखना है कि y दा मुੱਲ भरन तो बाद जो अपना न्यूमीरेटर बने, जो अपना अंश बने वो 3 ना घटदा होवे, उस तरह का पॉइंट ग्राफ से ड्रॉ करना ईजी रहिंदा है। हुण देखो जे मैं y नूं 0 मान लवां तो तुहाडे कोल 12/3 ही रह जाएगा ना, वो कटदा है ना, तो इस करके आपां y 0 मान सकते हैं। तो पहला हल मैं मान लिया कि मनो y जिहड़ा है वो 0 है, लैट कर लो y इक्वल टू 0। तो 12/3 रह जाएगा, 4 तीए 12। ठीक है, आई होप थोनों मेरी राइटिंग तो समझ आ ही रही होगी है ना। तो x आ गया बेटा जी 4 तो y आपां मन्निया सी 0। हुण आपां नैक्सट मनदे हां, लैट कर लो y नूं। हुण तुसीं 1 लैट करके पहला सोच लो, मतलब इत्थे जे 1 मन्नांगे आपां तो 4 एकम 4 बनूगा, 12 दे विच 4 जुड़नगे तो वो किन्ने हो जाणगे 16। 16 तो इन्ना कटदा नहीं, तो यदा मतलब आपां 1 नहीं मनना। हुण आपां 2 मन के देखो, 4 दूनी 8, 12 दे विच 8 जोड़ांगे किन्ने बनणगे 20। 20 भी नहीं 3 ते कटदा है ना। तो आपां इत्थे बेटे 4 मन के देख लो, चौकम चौकी 16, 16 दे विच आपां 12 जोड़ांगे 28, 28 भी 3 ते नहीं कटदा। इहदा मतलब इत्थे आपां नूं बहुत सोचण दी लोड़ है। सम जिहड़ा है बहुत लंबा चला जाऊगा जे आपां इस तो वड्डे आंसरस सोचांगे। तो थोड़ा जिहा होर अपने मन के उपर ध्यान लगाओ कि इहनूं होर किवें आपां आंसरस इहदे फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी सोचिया तुसीं कुछ? देखो आपां कोई भी होर डिजिट जे इत्थे भरदे हां तो इहदा आंसर जिहड़ा बटियां दे विच ही आऊगा। सिर्फ एक आंसर ते इह जिहड़ा है बिना बटियां तो आंसर बनूगा जदों आपां माइनस का 3 भरांगे। इत्थे 4 है, आपां माइनस का 3 पुट करता, 12 ये भी 12 बन गया, 12 चों 12 जाणगे 0/3। इहदा मतलब की हुंदा है 0। तो जदों आपां बेटा y नूं माइनस का 3 भरिया तो अपना x कितना आ गया 0। हुण 2 आंसर तो आपां नूं मिल चुके ने, थर्ड आंसर लई भी इन्नी ही मेहनत करनी पऊगी बच्चे, तुहानूं इहदे विच ईजीली कुछ नहीं मिलेगा। इस सम दे विच आ भी आपां नूं बहुत सोच विचारन तो बाद आंसर मिलिया। ठीक है, हुण जे आपां इत्थे y नूं 4 भरदे हां तो चौकम चौकी 16 ते 12 हो गए 28। ठीक है, 5 भरदे हां तो 5 चौका 20, 20 दे विच 12 जोड़े 32 नहीं आएगा। जे आपां 6 भरदे हां तो 6 चौका 24, 24 दे विच तुसीं 12 जोड़ोगे तो यह बन जूगा 36। तो 36 3 ना घटदा, तो आपां ये मन सकते हैं। हाँ जी, तो 6 चौका 24/3। पर हुण इत्थे प्रॉब्लम की आऊगी जे तुसीं इहनूं 36 मान लोगे तो घटाउण तो बाद इहदा आंसर आऊगा 12। तो हुण इत्थे प्रॉब्लम की आनी है भी ग्राफ फिर आपां नूं सारे पासे 12 12 तक लैके जाना पैना। तो इत्थे तुसीं की मान लो इहनूं -6। उहदे नाल जिहड़ा तुहाडा आंसर है थोड़ा छोटा हो जाऊगा। 24 दे विचों 12 घटावांगे 12, वो भी माइनस का कट के आ जाऊगा -4। तो अपना आंसर आ गया y -6 x -4। तो आप तीनों दे तीनों सोल्यूशनस इस समीकरण दे पता कर ले। हुण आपां इन्हां दा ग्राफ बनाउने आ। हाँ जी बेटे कार्टीजन समतल मैं बना लिया है। ठीक है, तुसीं ये ग्राफ ते ड्रॉ करना है।
पहला आंसर देखो की है अपना 4 0। तो 4 अपना एक्स धुरे के उपर लभना है, लभ गया। 0 आपां किसी ते भी नहीं जा रहे, मतलब ये एक्स धुरे का बिंदु है, आपां 4 0 बिंदु है जिहड़ा वो लभ लिया। सैकेंड हैगा अपने को 0 -3, ਇਹਦਾ मतलब ये वाई ਧੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ है पॉइंट है। तो 0 तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, माइनस का 3 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ पहुँच जाएंगे वाई ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ये आंसर है अपने को 0 -3। नैक्सट है अपने को -4 -6 -4 -6। तो -4 तो आप एक्स धुरे तो इत्थे आ, माइनस का 6 आप इसे लाइन च नीचे जाते जाते -6 के सामने पहुँच जाना। तो इत्थे आ जाऊगा अपने को -4 -6। तो अगला काम की है, इन्हां तिन्ना पॉइंटां दे विचों पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करना, सरल रेखा ड्रॉ करना। तो जिहड़ी है अपने को इस इक्वेशन का ग्राफ शो होने लग जाएगा। हाँ जी देखो बेटे, मैंने जिहड़ी है लाइन तीनों पॉइंटां दे विचों पास करती हुई ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करन तो बाद उस लाइन के उपर वो समीकरण भी लिख दो जिहदा आपां ने ग्राफ बनाया सी। हरेक पॉइंट के उपर पॉइंट लिखना भी ना भुल्लिओ, ताकि आपां नूं पता लगे इत्थे तुसीं किहड़ा बिंदु जिहड़ा है वो ड्रॉ कीता, किहड़ा पॉइंट ड्रॉ कीता। हुण आपां इस तो बाद डे 41 दे विच भी ग्राफ ही बनाउणा सी। इस तो बाद बेटे वो बनाने आपां। हाँ जी बेटे, ये अपनी डे 41 की होम असाइनमेंट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, सोल्यूशन बॉक्स आप बना ले। हुण फस्ट इक्वेशन दे विच एक्स आप इधर ही रख लिया, ओवर दे विच 3 लै गए। हुण फिर उही समस्या अपने कोले वाई का आंसर इस तरह का सोचना है ताकि हल करन तो बाद अंश जिहड़ा है वह 3 नाल कट सके। तो पहला तो वाई नूं 0 ही सोच के देखो, जे 0 हुंदा तो बचूगा 10/3। ठीक है, 10/3 तो कटदा नहीं 3 ते। हुण आपां इत्थे भरांगे बेटे वाई नूं 1। जदों आपां 1 भरदे हां तो 10 - 4/3 किन्ना आ जाऊगा अपने को 6/3 कट के आ जाऊगा 2। तो जे आपां वाई नूं 1 मन्निया सी तो एक्स का आंसर किन्ना आ गया 2। हुण सोचो 2 भर के कोई आंसर बनता है? जे इत्थे 2 मनदे आ तो 4 दूनी 8, 10 चों 8 जाणगे 2, तो ये तो कटदा नहीं। 3 भर के देख लो, नहीं कटेगा। 4 भर के देखो, हाँ 4 भर के ये कट सकता है। तो लेट y = 4। चौकम चौकी 16, 16 चों 10 घटावांगे बचनगे तो 6 ही, पर नैगेटिव। तो आंसर भी अपने को माइनस का 2 आऊगा। तो आप वाई मन्निया सी 4, एक्स का आंसर आया माइनस का 2। हुण आपां ने थर्ड आंसर सोचना है भी वाई नूं की मन्नीए। हाँ जी 5 मनदे आ, देखो 5 मन्नीए, जे 5 चौका 20, 20 चों 10 गए 10, नहीं आऊगा। 6 चौका 24, 24 चों 10 गए 14, ये भी नहीं आऊगा। तो इन्हूं हुण फिर बहुत दिमाग ला के सोचना पऊगा भी की मन। हाँ जी, फिर बहुत दिमाग लाने तो बाद आपां सोचा भी 2 मन के देखो, कादा माइनस का। जो आपां इत्थे माइनस का 2 भरते हैं तो उन्हें माइनस नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई की, प्लस 4 दूनी 8 बन गया, 10 ते 8 हो गए 18, ये कट के कितना आ जाऊगा 6। विजिबल है थोड़ा है ना ब्लैक बोर्ड? हाँ जी, तो आपां ने एक्स सॉरी वाई मन्निया सी माइनस का 2 तो एक्स आ गया अपने को 6। तो पहली इक्वेशन दे आपां तीनों सॉल्यूशनस कढ लए ने। हुण दूजी नूं ध्यान नाल देखो, उहदे सारे दे सारे जिहड़े डिजिट ने वो 2 दे पहाड़े ते जा रहे ने। तो इत्थे आपां कॉमन कढ के अपनी इक्वेशन नूं छोटा कर लांगे। देखो मैं 2 कॉमन कढता, वाई मैं उधर लै गई। हुण इत्थे वाई का मुल भरी चलो, एक्स का आंसर आई जाऊगा। दे वाई 0 भरदे हो तो एक्स 1, जे तुसी वाई नूं 1 भरदे हो तो आंसर 2, जे वाई नूं तुसी 2 भरदे हो तो आंसर 3।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਤਾ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। 3 ਆਨਸਰ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਡਾਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਡਾਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, x ਬਰਾਬਰ 2 y ਬਰਾਬਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਡੇ 42 ਦੇ ਹੀ 2 ਗ੍ਰਾਫ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੀਟ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਬੇਟੇ।